Hello and welcome back to the history module. Today I have lots of news to give you. So before we start the chapter, let me start by giving you some good news. As you all know, you have received a notice um, in your groups about something about the syllabus. So, looking at the conditions of the pandemic and seeing that still there is no hope of the schools being reopened. So we have reduced, the government and the UP board has reduced 30% of the syllabus from all the subjects for classes 9th to 12th. So for you, unfortunately जो चैप्टर हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, that is from the beginning of time, वो अब सिलेबस में नहीं है, राइट? सो जो 3 चैप्टर्स आपके कटे हैं पूरे सिलेबस में, वो है चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, चैप्टर नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर्स और चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स. ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स अब आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे. ओके, दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. What you have to do now is the chapter that I am teaching you right now, writings and city life, will be the chapter that will be coming in the exams. So I will be sending you a PDF also. अब मैं आपको लिख कर सिलेबस भेजूँगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए. एंड आई विल ऑल्सो राइट द पैटर्न ऑफ द पेपर, बट आई विल सेंड इट टू यू ऑन मंडे. ओके, ताकि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और होपफुली फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए स्कूल खुल जाना चाहिए. हाफ ईयरलीज के लिए तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल खुलेगा. तो हाफ ईयरलीज में you will be getting only MCQs, that is multiple choice questions. So if the books are available in the market, please buy it and read the chapters thoroughly so that you may be able to answer. क्योंकि जब MCQs होंगे तो चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट? पैटर्न एग्जैक्टली वही फॉलो हो रहा है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉलो किया था. One of you has asked me if you have to make the notes in the fair copy. जब when you listen to the lecture, उस समय आप रफ कॉपी में नोट्स बनाया करिए. लेकिन जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेजती हूँ, especially the short answers that I give you and the long answers that you have to do it on your own, that you will do in the fair copy. क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर चुके हैं. सो नो नीड टू टेयर द पेजेस और नो नीड टू कट इट ऑफ. जस्ट लीव इट एज इट इज़ and you can start the second chapter from the next page. Okay, so don't worry at all कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, and just follow the instructions, whatever instructions I give you, and it is not that bad what you are thinking. पर फाइनल के लिए जो पैटर्न मैं आपको भेजूँगी, that you have to follow. Okay, now coming back to the chapter, that is writings and city life. In the like previously in the last video we started the chapter and I told you about the geographical conditions of Mesopotamia, because in this chapter we are particularly dealing with Mesopotamia. ठीक है, मैंने आपको मेसोपोटामिया का मतलब बताया था कि वो ग्रीक वर्ड मेसोस और पोटामुस से बना है. मेसोस मतलब मिडल, बीच में, और पोटामुस मतलब रिवर. सो मेसोपोटामिया इज अ लैंड बिटवीन 2 rivers. ओके, द 2 rivers वर यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस. देन आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि कैसे अर्बनाइजेशन आया, कैसे डेवलपमेंट हुआ सिटी लाइफ में, और कैसे डेवलपमेंट से राइटिंग भी डेवलप हुई. बिकॉज एनी सिटी में जब डेवलपमेंट होता है तो वो राइटिंग को भी डेवलप करता है. ओके,
Now we are on, today we will be dealing with three headings, that is movement of goods into cities, development of writing, literacy और uses of writing, right? तो basically हम अभी भी मेसोपोटामिया में हैं और हम we are dealing with how development started in मेसोपोटामिया. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि डेवलपमेंट शुरू हुआ, ट्रेड शुरू हुआ और लोग बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड करने लगे, बिजनेस करने लगे. So but because it's a place, you know, it's a desert and not much like wood was available over there. Palm dates जो होते हैं, date palms, खजूर के जो पेड़ होते हैं, उसकी वुड अवेलेबल थी, पर काफ़ी चीज़ों के लिए, स्टोन्स के लिए, कॉपर के लिए टर्की से और ईरान से बिजनेस करना पड़ता था. ओके, सो देयर वाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बोथ वर गोइंग ऑन ड्यूरिंग that times because no metals, proper metals were available for tools and vessels in proper Mesopotamia, that is we are talking about Iraq. उस समय में वहाँ पे इतना सब कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो जो भी उनके पास अवेलेबल था वो लोग दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे और दूसरे कंट्री में जो चीज़ अवेलेबल थी वो वहाँ से उसको इंपोर्ट करते थे ताकि दोनों का बिजनेस चलता रहे और काम होता रहे. राइट, नाउ वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि जब बिजनेस होता है तो नेचुरल बात है दैट ट्रांसपोर्ट विल ऑल्सो डेवलप. So the cheapest transport available during that time was the water transport, and there were river boats जिसमें लोग इधर they used to go from one place to another. So water transport also developed. Now when you are doing business with people, you can't do it orally. ठीक है, जब आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं, बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स हो रहे हैं, का लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, देन यू हैव टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल. ओके, सो द फर्स्ट जहाँ से हमको पता चला है कि ये writing had developed in Mesopotamia is the oldest tablet that we have found by the archaeological department had found it. That tablet clay से बनी है वो और बुक के शेप में होती थी लेकिन मिट्टी की होती थी, and that is about 3200 BC की में जो टैबलेट लिखी गई थी वो मिली थी. And in that tablet you can see little pictures like signs, like numbers, or pictures of oxen, fish, bread, जो खाने वाली ब्रेड होती है, रोटी, लोव्स, एक्सेट्रा. तो हम लोगों को पता चलता है कि पहले वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते थे, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो बात करना चाह रहे थे, जिन साइंस से वो बात करना चाह रहे थे, दैट वाज रिटन और दैट वाज पोर्ट्रेड. लगभग कम से कम 5000 साइंस थे जो कि हमको मिले हैं, जो कि टैबलेट में इंस्क्राइब्ड थे. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट the writing initially started by using signs and numbers, right? But जैसे जैसे transactions बढ़ते गए और writing records का ज़रूरत बढ़ती गई, it was essential कि जितना business हो रहा है वो लिखा पढ़ी से हो, that will be more legal and people will have record. So people started maintaining records of the business transactions that they were doing, and these records were written on the clay tablets. Okay, जो clay tablets बनाई गई थी उन पे मिट्टी की होती थी वो,
और जिस वक्त वो गीली होती थी उसी वक्त लिखा जाता था उन पे। फिर जब वो सूख जाते थे तो जो भी उस पे लिखा था वो इनग्रेव्ड रहता था, राइट। तो जो फर्स्ट राइटिंग जिसको हम प्रॉपर वे में बोलेंगे कि द फर्स्ट राइटिंग दैट वाज डेवलप्ड और विच इज़ नोन टू अस, दैट वाज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। राइटिंग का नाम है क्यूनिफॉर्म। सो द फर्स्ट राइटिंग developed, which is maybe you can say about 2600 BC, was called cuneiform. Okay, and these clay tablets have been found जिसमें cuneiform language में लिखा गया है, right? Now उसके बाद जो फर्स्ट written language आई है, that has been the Sumerian language. Okay, Sumerian language में 2600 letters होते थे, okay, जिसमें letters भी थे, लेकिन what I'm trying to say is जब क्यूनिफॉर्म में लिखा जाता था तो नंबर्स और साइंस की साइंस मतलब फिशेस का साइन, एनिमल की पिक्चर्स या नंबर्स या जैसे डांसिंग पिक्चर्स हैं, जैसे कि केव्स में ड्राइंग्स बनती थी वैसे ही क्यूनिफॉर्म में भी बनती थी। सो जब राइटिंग प्रॉपर डेवलप हुई, जब लेटर्स आना शुरू हुए तो वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज जिसको कहते हैं सुमेरियन। सो सुमेरियन इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज of the world, or especially in the Mesopotamian civilization. Clear? And in that particular language there were 2600 letters. Okay, now language जब बन गई, जब सुमेरियन लैंग्वेज आई तो सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए या बिजनेस डील्स मेंटेन करने के लिए नहीं रह गई। मीन्स जो राइटिंग का जो दायरा था वो बढ़ गया। गॉट इट? यू मीन्स इट वॉज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, but people started writing more things like dictionaries, like legal transfers, like business deals, contracts, और ये सब पूरा वो लोग लिख लिख के करने लगे। Later on in the year 2400 BC till 2000 BC, the Sumerian language was replaced by the Akkadian language. ठीक है, सुमेरियन भाषा जो थी वो अकेडियन भाषा से रिप्लेस हो गई इन द ईयर 2400 BC और 2000 के बीच में। नाउ आई ऑल्सो ये जो राइटिंग का जो प्रोसेस था ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। ओके, तो there were many Mesopotamians or people living in Mesopotamia who did not know how to read and write. Okay, the reason was कि वहाँ पे hundreds of signs and बहुत complex language थी और बड़े ढेर सारे अजीब अजीब से साइंस होते थे जो हर किसी की बात नहीं था उनको याद रखना और उसको पढ़ना समझना। तो ये जो टू राइट द रिकॉर्ड्स एंड ऑल, ये काम थोड़े हाई लेवल लोगों का था। ओके, सो एंड दोज हु कुड डू दिस वर वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इन द Mesopotamian society, those who could read and write. Okay, writing was also a very great skill. It was an art because पहले क्ले को गीला किया जाता था, फिर उसको दबा दबा के उसकी बुक के शेप की टैबलेट बनती थी। फिर टैबलेट थोड़ा लंबा होता था और आई विल सेंड यू द पिक्चर्स अगेन ऑफ इट। और उसको जब वो लोग उस टैबलेट्स को बनाते थे
तो जब वो गीली होती थी, जब वो दबा दबा के उसको फ्लैट कर देते थे, तब जब वो गीली रहती थी तो गीले में ही लिखना पड़ता था, ताकि जब वो सूख जाए तो वो इम्प्रिंट उस पर रहे. ओके, सो राइटिंग ऑन द वेट क्ले वॉज नॉट वेरी ईजी and people could not do it. So it was an art which was only limited to some people in the Mesopotamian society. जो लास्ट चीज़ आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ द यूजेस ऑफ राइटिंग, यानी कि मेसोपोटामियन सोसाइटी में राइटिंग के क्या यूजेस थे और उसका जो दायरा था वो कितना बड़ा था, या क्या हमको उसके बारे में क्या मालूम है. ओके, नाउ एक सिटी थी मेसोपोटामिया में जिसका नाम था उरुक. उरुक वॉज द बिगेस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया एंड द मोस्ट डेवलप्ड सिटी. ओके, नाउ वहाँ के राजा जो सबसे वन ऑफ द लाइक वेरी अर्लीस्ट किंग्स ऑफ उरुक वॉज किंग एनमरकर, राइट. नाउ एक बार ऐसा हुआ कि उनको उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा कि उसको कहीं जाना था, कि तुम यहाँ से लेकर तुमको एक पहाड़ के नीचे जाना था, कि तुम पहाड़ से नीचे जाओ, मेरा मैसेज दो. फिर उसको पहाड़ के ऊपर जाना था. तो ऐसे 2-3 बार उसको मैसेजेस डिलीवर करने थे. तो आने जाने में वो जो आदमी था उसने मैसेजेस को बिल्कुल, क्योंकि वो रिमेंबर नहीं कर पाया, याद नहीं रख पाया ठीक से, तो उसने उल्टा सीधा मैसेज दिया. तो किंग एनमरकर जो थे उनको लगा कि जब ये बोल ही नहीं पा रहा है तो बेटर है कि हम लोग लिख के भेजें, ताकि जिसको मैसेज रिसीव करना है वो भी ठीक से रिसीव हो और जो मैसेज भेजेगा वो भी ढंग से भेज सके, जो पढ़ेगा वो भी ठीक पढ़ सके, राइट. सो देयरफॉर because these messages got mixed up, therefore he was the one who gave more encouragement to writing, right. तो उन्हीं के ज़माने के एक पोएट हैं जिन्होंने उन्हीं के ग्लोरिफिकेशन में एक पोएम लिखी थी, क्योंकि उस ज़माने के राजा लोग जो स्पेशली जो पढ़ना लिखना जानते थे, दे वुड मेक श्योर कि उनकी ये क्वालिटी कि वो पढ़ लिख सकते हैं ये सबको पता हो. ओके, बिकॉज रीडिंग एंड राइटिंग वॉज अ मैटर ऑफ सुपीरियॉरिटी. गॉट इट? यानी कि जो लिख सकता था, और ख़ास तौर से जो राजा लिखना पढ़ना जानता था, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, और उसको लोगों को बताना भी एक टास्क था कि लोगों को पता रहे कि ये आदमी को लिखना पढ़ना आता है. और आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था. मीन्स दे वर रिस्पेक्टेड अ लॉट and they were considered to be very superior people. Okay, so coming to the recap of this video, today I have told you about how writing developed in Mesopotamia, and Sumerian was the oldest language which was replaced by Akkadian. People started writing because they were doing trade, and city life developed, trade developed, transport developed, और सबके डेवलपमेंट के चलते लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि उनको लिखा पढ़ी की ज़रूरत है और सब कुछ लीगली होना चाहिए. सो टू प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स and written records, writing was developed, which later on became a prestige issue, and people who knew how to read and write were considered very superior, especially the kings. And when they knew कि उनको आता है, तो the people who were doing this job of writing and reading, they had to mention it, especially in those clay tablets, कि
इस राजा को उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनकी बढ़ाई करने के लिए ये ज़रूर मेंशन करना पड़ता था कि उस राजा को पढ़ना लिखना आता है. ओके, सो रीडिंग, राइटिंग एंड बीइंग लिटरेट आज भी उतना ही ज़रूरी है. द ओनली थिंग इज़ दैट द जो माहौल है आजकल का, इट इज़ नॉट क्वाइट favorable for us, but never mind, we are trying our best to reach out to you. You do your best sitting at home, seeing this video, understanding it, reading the chapter, and making your notes, right? So I'll continue with this chapter in the next module. Don't worry about the syllabus. Only 3 chapters have been deducted, that I have already told you. I will send you the syllabus and the pattern of the paper on Monday. Till then, take care, stay safe, and enjoy the weekend. Bye.